Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to share the video regarding use of financial functions in Excel. FV, NPER, PMT, PPMT, IPMT and PV. So these are the financial functions that we are going to study in this video. So before getting started, let's understand what is exactly the meaning of value. Value can be defined as those things that are valued by someone. When you value something, you consider it important and worthwhile. For example, if you value someone's opinion, then you will definitely ask that person's advice before making a big decision. Value has to do with how much something is worth, either in terms of cash, means in monetary terms, or importance of someone's in your life. We can say that value holds something in high regard. Like if you value your health, then you will start being a little kinder to yourself. One more example is the value of his investment has risen by more than rupees 50,000. Let's discuss our first financial function, that is FV, which means future value. Future value is the value of a current asset at a future date based on an assumed rate of growth. The future value is important to investors and financial planners as they use it to estimate how much an investment made today will be worth in the future. Suppose आज आपने अपनी कुछ certain amount of money invest की है at the rate of 10% for a period of 1 year. अब आप देखोगे जो आज आपने इन्वेस्ट किया है वो 1 साल के बाद उसकी आपको कितनी वर्थ होगी, कितनी वैल्यू होगी. अब जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं, ये एस्टिमेट करते हैं कि आज हम कितनी इन्वेस्टमेंट करें कि हमें फ्यूचर में इसकी वर्थ हो. Will it be profitable to us or not? So in short, we can say that whatever the money you would be getting after a certain period of time is your future value, and whatever the money you are holding right now, the value at the current period of time is your present value. PV means present value. As we know that value of money is not constant, it would change. Value of money कभी भी constant नहीं रहती है, it keeps on changing. Like after 3 years or 5 years, your value of money may increase or decrease, and before 3 years or 5 years of time, it wasn't the same. This is all just because of the fluctuations in the value of money. Here is the syntax or formula in Excel. FV, round bracket, rate, comma, NPER, PMT, comma, PV in square bracket, comma, type in square bracket and round bracket closed. ये फॉर्मूला होता है जो हम एक्सेल में अप्लाई करते हैं टू कैलकुलेट दी फ्यूचर वैल्यू. ये हम जब एक्सेल में करेंगे तब आपको इससे ज्यादा क्लियर होगा. नाउ कम्स टू रेट. द इंटरेस्ट रेट पीरियड. इफ यू मेक ईयरली पेमेंट इंडिकेट एन annual interest rate. If you pay monthly, specify a monthly interest rate and so on. अब आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका एनुअली भी हो सकता है, आपका मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और वीकली भी हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन. NPER. Now what do you mean by NPER? NPER stands for number of periods. The number of periods required to clear the loan amount at the specified interest rate and the set the monthly EMI amount. आपने अगर लोन ले रखा है तो कितने पीरियड के लिए लोन ले रखा है. अब जो ये पीरियड होगा ये आपका ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है. आपने ये जो लोन लिया है वो कितने पीरियड के लिए ले रखा है, या फिर आपने ये जो FD में या किसी भी RD में आपने इन्वेस्ट किया है वो आपने कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है. तो दैट इज अ नंबर ऑफ पीरियड. नाउ लेट्स से आई हैव 10,000 rupees at present and now I am going to invest this 10,000 rupees at the rate of 10% for a period of 1 year. मेरे पास आज की डेट में 10,000 rupees है जो कि मेरी प्रेजेंट वैल्यू हुई और मैं उसे इन्वेस्ट करने जा रही हूँ at the rate of 10% for the 1 year. मुझे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. 1 ईयर के लिए मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ और आफ्टर 1 ईयर जो मुझे अमाउंट मिलेगी दैट इज 11,000. वो होगी हमारी फ्यूचर वैल्यू. लेट्स सपोज आज की डेट पे आपके पास 15,000 रुपीज है
और आप इसे एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 years के लिए। तो अब आप देखोगे कि जो आपका आज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आफ्टर 1 year के बाद कितना बन जाएगा, वो आफ्टर 2 years के बाद कितना हो जाएगा एंड आफ्टर 3 years के बाद कितना हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 2 मेथड से चेक करेंगे कि आपने ये जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कौन से मेथड से कितना ग्रो करेगा। फर्स्ट वन इज अ सिंपल इंटरेस्ट मेथड एंड सेकेंड वन इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। अब देखना ये है, अगर आपका पैसा सिंपल इंटरेस्ट मेथड से ग्रो करेगा तो कितना ग्रो करेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट और ओरिजिनल अमाउंट ऑफ लोन। सपोज आपको यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अब सिंपल इंटरेस्ट बोलता है कि हर साल ओरिजिनल अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर ये 15,000 का 10% 1500 ऐड हो जाएगा तो आपको एक साल के बाद 16,500 अमाउंट मिलेगी। सिमिलरली सेकेंड ईयर के बाद भी आपको यहाँ पे 1500 ऐड हो जाएगा बिकॉज रूल यही कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे करेगा। तो हमारा ये 15,000 के ऊपर हर साल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 16,500 में हमारी 1500 ऐड हो जाएगी और सेकेंड ईयर के बाद आपको 18,000 अमाउंट मिलेगी। थर्ड केस में भी 10% प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 1500 ऐड होगा तो यहाँ पे आपको 19,500 मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगी। तो नाउ वी विल कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। सेम वही एग्जांपल मैं ले रही हूँ। आज की डेट पे आपके पास 15,000 रुपीज है और आप उसे एफडी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो एट द रेट ऑफ 10% फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। अब हमारा एक साल के बाद यहाँ पे हम 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेसिकली व्हाट? कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट accumulated ओवर द पीरियड। मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट accumulated ओवर द पीरियड। तो फर्स्ट ईयर हमारा ये हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के बाद हमें 16,500 मिलेगा। लेकिन अब हमने जैसे सिंपल इंटरेस्ट में किया था कि उसमें ओरिजिनल अमाउंट मीन्स जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर हर साल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था, बट यहाँ पर नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जितनी आपको एक साल के बाद अमाउंट मिलेगी उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट होगी वो हो जाएगी 18,150 और वी कैन से दैट कि अगर हम 16,500 को इंटू 1.10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी सेकेंड ईयर हमारी इतनी अमाउंट होगी। थर्ड ईयर के केस में भी सिमिलरली हमारी जो हमें सेकेंड ईयर अमाउंट मिलेगी उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और वी कैन से दैट जितनी हमें अमाउंट मिलेगी सेकेंड ईयर अगर हम उसे 1.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारी थर्ड ईयर की ये मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। तो आप देख सकते हैं दोनों मेथड्स को कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन से मेथड से आपका पैसा कितना ज्यादा ग्रो किया। तो बेसिकली एसआई जो होता है वो बहुत कम यूज होता है। जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करते हैं जब भी यूज करते हैं बिकॉज इसको यूज करने से बेनिफिट होता है। तो हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे मैथमेटिकली टर्म्स में मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि मैथमेटिकली टर्म्स में हम इसे कैलकुलेट करते हैं FV इज इक्वल टू PV 1 प्लस R रेज टू पावर n। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे आपकी प्रेजेंट वैल्यू है 15,000 और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एट द रेट ऑफ पीरियड ऑफ 3 years के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी ये इतनी ही अमाउंट बनेगी। आपको 3 years के बाद ये
इतना ही पैसा मिलेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय पीएमटी। PMT stands for payment. PMT function is a financial function that calculates the payment for a loan based on a constant interest rate, the number of period and the loan amount. A PMT formula in Excel can compute a loan payment for different payment frequencies such as weekly, monthly, quarterly or annually. PMT बेसिकली ये आपकी होती है इंस्टॉलमेंट। सपोज आपने लोन ले रखा है तो आपकी वो इंस्टॉलमेंट डिवाइड हो जाती हैं। आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं, ईयरली इंस्टॉलमेंट हो सकती हैं, वीकली इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं। इसका जो साइंटिक्स और फॉर्मूला होता है एक्सेल में वो होता है PMT राउंड ब्रैकेट rate, NPER, PV, FE in square bracket, type in square bracket, round bracket closed. Now comes to PPMT. PPMT function can be used to calculate the principal portion of a given loan payment. For example, you can use PPMT to get the principal amount of payment for the first period, last period or any period in between. अब इसका purpose होता है to get the principal payment in a given period. अब आपकी जो रीपेमेंट होती है वो हमारी बनती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। तो ये जो पीपीएमटी है वो कैलकुलेट हम करते हैं टू गेट द प्रिंसिपल पेमेंट इन गिवन पीरियड। अब यहाँ पे इसका जो साइंटिक्स और फॉर्मूला होता है एक्सेल में वो होता है पीपीएमटी राउंड ब्रैकेट रेट पर। अब यहाँ पे जो पर यूज किया है वो होता है सपोज आपका जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 18 मंथ्स के लिए हैं। अब उसमें आपकी इंस्टॉलमेंट में आप देखना चाहते हो कि मेरा थर्ड मंथ में प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है या मेरी फिफ्थ मंथ में, एट्थ मंथ में, 10th मंथ में मेरी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, उस वैल्यू को देखना चाहते हो तो ये पर उसके लिए यूज होता है। फर्दर हम इसे जब एक्सेल में करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। NPR we know that number of period, PV is present value, FV in square bracket, type in square bracket and round bracket closed. Now comes to IPMT. IPMT function can be used to calculate the interest portion of a given loan payment in a given payment period. For example, you can use IPMT to get the interest amount of a payment for the first period, last period or any period in between. Purpose इसका होता है to get interest in a given period. अब जैसे कि मैंने बोला कि रीपेमेंट में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा आपका इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए गिवन पीरियड टू गेट इंटरेस्ट इन अ गिवन पीरियड के लिए हम इसे IPMT के हेल्प से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। और इसका साइंटिक्स और फॉर्मूला जो एक्सेल में होता है वो है IPMT राउंड ब्रैकेट रेट पर, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि पर की यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होती है। आपको मीन्स की 18 मंथ्स का लोन इंस्टॉलमेंट है तो आप उसमें देख सकते हो कि फिफ्थ मंथ, सेकेंड मंथ, फिफ्थ मंथ और सेवेंथ मंथ, 8th मंथ में आपकी कितनी इंटरेस्ट बनती है तो वो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। NPR, PV, FE in square bracket, type in square bracket and round bracket closed. अब जहाँ पे हमने यहाँ पे स्टडी किया है कि हमारी जो रीपेमेंट होती है, as we know that repayment is equal to principal amount plus interest. इसी तरीके से हमारी रीपेमेंट बनती है। ये जो हमारी रीपेमेंट होती है इसे हम कहते हैं PMT और ये जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होती है इसे हम यहाँ पे कहते हैं PPMT और हमारा ये जो इंटरेस्ट होता है वो होता है हमारा IPMT, right? Now let's discuss what do you mean by present value. PV means present value. Present value is the current value for any investment made. This present value is dependent on the rate of the investment and the number of periods for the payment with the future value. Or present value is
today's value of money you expect from future income and is calculated as the sum of future investment returns discounted at a specified level of rate of return expectation. Whatever the money you are holding right now, the value at the current period of time is your present value होती है. इसका जो साइंटिक्स और फॉर्मूला एक्सेल में होता है वो होता है पीवी राउंड ब्रैकेट रेट एनपीईआर कॉमा पीएमटी कॉमा एफवी इन square bracket comma type in square bracket and round bracket closed. Now let's come to Excel. अब यहाँ पर जितने भी हमने फाइनेंशियल फंक्शंस के मीनिंग को स्टडी किया, उसके कंसेप्ट को स्टडी किया, अब हम देखेंगे कि उसका एक्सेल में यूटिलाइज कैसे होता है. सबसे पहला फंक्शन हमने स्टडी किया दैट इज फ्यूचर वैल्यू एफवी. तो अब यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू का आप फॉर्मूला देख सकते हो एफवी राउंड ब्रैकेट रेट. रेट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉमा एनपीआर मीन्स नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने पीरियड के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, कॉमा पीएमटी. पीएमटी इज आर इंस्टॉलमेंट्स, कॉमा पीवी इन स्क्वायर ब्रैकेट. पीवी मीन्स प्रेजेंट वैल्यू, कॉमा टाइप. टाइप मीन्स होता है, ये अभी मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया है, मैं यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करी हूँ. एट प्रेजेंट मेरे पास 1,60,000 रुपीज है. एट द रेट ऑफ 7% फॉर द पीरियड ऑफ 5 years के लिए आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट. सो व्हाट विल बी माय फ्यूचर वैल्यू? तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे. इज इक्वल टू एफवी टैब. अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स पूछ रहा है, तो उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम इसे फिल करते रहेंगे. तो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 7% है. नंबर ऑफ पीरियड हमारा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे पीएमटी इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो मैं इसे कॉमा के बाद एक और कॉमा लगा दूंगी सो दैट मैं डायरेक्टली पीवी तक पहुंच जाऊं. और मेरी प्रेजेंट वैल्यू है 1,60,000 कॉमा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टाइप? टाइप मीन्स होता है कि आफ्टर 5 years के बाद जब आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगी तो वो आपको बिगनिंग ऑफ द पीरियड में चाहिए या फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड में चाहिए. लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ले रही हूँ कि मुझे यहाँ पे एट द एंड ऑफ द पीरियड चाहिए. तो मेरा यहाँ पे ये आंसर आ गया 2,24,408.28. ये है मेरी फ्यूचर वैल्यू. अब यहाँ पर हम इसे देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक मैनुअली टेबल सेट किया है जिसकी हेल्प से हम देखेंगे कि ये जो हमारे फॉर्मूला लगाया है हमने, क्या ये हमारी करेक्ट वैल्यू निकाली है या नहीं. तो हम यहाँ पर लेंगे एज वी नो कि फर्स्ट ईयर के लिए आपका ओपनिंग बैलेंस जितनी आपकी प्रेजेंट वैल्यू है वही आपका ओपनिंग बैलेंस होगा फर्स्ट ईयर के लिए. और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो आपका होगा इनटू दिस. और आपकी मैच्योरिटी अमाउंट मीन्स आपको जो 1 साल के बाद अमाउंट मिलेगी वो होगी ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट अमाउंट. और यहाँ पर हमारा मोस्टली जो यूज होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड यूज होता है. इसीलिए सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वही आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. और यहाँ पे जो आपकी इंटरेस्ट अमाउंट है वो इसी ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट होगी. और आपका सेकेंड ईयर आपको दिस प्लस दिस आपको अमाउंट मिलेगी. अब मैं यहाँ पर इसे ड्रैग भी कर सकती हूँ कि मेरे को इजिली बार बार टाइप करने से अच्छा है कि मैं इसे ड्रैग कर लेती हूँ. बट अब आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम अकर हुई है. अब ये प्रॉब्लम क्यों हुई है? बिकॉज यहाँ पर मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरा B7 सेल में है. बट जैसे ही मैंने उसे ड्रैग किया तो B7 के बाद उसने यहाँ पर B8 को उठा लिया. तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम F4 शॉर्टकट की को अप्लाई करेंगे. नाउ व्हाट इज F4? F4 is the keyboard shortcut key in Excel that repeats your last command or action as many times as you want. अब मैं क्या करूंगी कि ये जो मुझे पता है कि B7 में मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं इसे यहाँ पे इसे रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी कि मैं नीचे इसे ड्रैग करूंगी तो मेरा यही रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लेगा उठाएगा. तो मैं इसे F4 प्रेस कर दूंगी. ये कुछ आपका $B के साथ आपको पता लग जाएगा कि ये रिस्ट्रिक्ट हो गया. प्रेस एंटर बटन. अब मैं इसे जब ड्रैग करूंगी तो ये मुझे राइट अमाउंट देगा. तो आप देख सकते हो कि आफ्टर 5 years के बाद जो मेरी मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो मेरी इस एक्सेल में जो मैंने कैलकुलेट किया है उसके साथ मैच करती है. बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव टर्म में है और फ्यूचर वैल्यू है जो मेरी नेगेटिव टर्म में है. एज वी नो दैट जो नेगेटिव होती है वो हमारी
आउटफ्लोज को डिनोट करती है, आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करती है। बिकॉज कैश अगर आपकी तरफ से जा रहा है तो वो आउटफ्लो हो गया, देन इट मस्ट बी नेगेटिव टर्म में होना चाहिए। और जो कैश आपके पास आ रहा है वो इनफ्लो होता है तो इट मस्ट बी इन पॉजिटिव टर्म। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैंने प्रेजेंट वैल्यू को नेगेटिव में ले लिया। क्यों? क्योंकि एक तरह से मैंने 1,60,000 इन्वेस्ट किया, एक तरह से मेरे से ये पैसा जा रहा है। 5 साल के बाद मुझे इतनी अमाउंट मिलेगी, दैट विल बी माई कैश इनफ्लो हो रही है ये। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं इंश्योरेंस का। अब इंश्योरेंस में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ और हर साल मैं 15,000 प्रीमियम पे कर रही हूँ एट द रेट ऑफ 8% फॉर द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स के लिए। तो मैं देखूंगी कि मुझे आफ्टर 25 ईयर्स के बाद मुझे ये कितना पैसा मिलेगा। तो मैं लगाऊंगी FV टैब, यहाँ पे हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट NPER, कॉमा PMT इज आर इंस्टॉलमेंट मीन्स प्रीमियम अमाउंट। तो यहाँ पर मैं इसे ये लूंगी। PV हमारे पास नहीं है तो मैं इसे डबल कॉमा लगा दूंगी। और टाइप में कि मुझे ये एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड चाहिए या एट द एंड ऑफ द पीरियड चाहिए, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी कि मुझे ये एट द एंड ऑफ द पीरियड चाहिए। तो ये होगा हमारा। अगर यहाँ पर मैं लगाती हूँ, अच्छा अभी यहाँ पे मेरी फ्यूचर वैल्यू आ रही है 10 लाख समथिंग, बट अगर मैं यहाँ पर इसे टाइप को चेंज करती हूँ कि मुझे बिगनिंग ऑफ द पीरियड में चाहिए, तो ये मेरी अमाउंट चेंज हो जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पर भी प्रीमियम आपका जा रहा है, आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, ये आउटफ्लो है, तो मैं इसे यहाँ पर नेगेटिव ले लूंगी और इससे मेरी फ्यूचर वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर मैंने RD में इन्वेस्ट कर रही हूँ, अब RD में आपको पता है कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स हमारी जाती है और मेरी 8,000 की मंथली इंस्टॉलमेंट जा रही है एट द रेट ऑफ 10% मैंने इन्वेस्ट की है फॉर द पीरियड ऑफ 18 मंथ्स के लिए। यहाँ मैंने ईयर्स नहीं लिए, यहाँ मैंने मंथ लिया है। मंथ्स में मैं 18 मंथ्स के लिए मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे इज इक्वल टू FV ब्रैकेट। अब आप देख सकते हो कि जो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ईयरली है, तो इसे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइडेड बाय 12 करूंगी, कॉमा जो आपका नंबर ऑफ पीरियड है वो मंथ्स में है, कॉमा PMT इज योर इंस्टॉलमेंट जो आपकी RD की है। PV हमारे पास नहीं है। टाइप में यहाँ पे लूंगी कि मुझे मेच्योरिटी अमाउंट जो है आफ्टर 18 मंथ्स मुझे बिगनिंग ऑफ द पीरियड में चाहिए। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसको ही इसी ही एग्जाम्पल को मैंने प्रैक्टिकल भी यहाँ पे करके दिखाया है सो दैट हमें क्लियर हो जाए कि जो हमने फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है वो एकदम सही कैलकुलेट किया है। आप देख सकते हो फर्स्ट मंथ में आपकी 8,000 प्रिंसिपल अमाउंट है और इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट को मैंने ईयर टू मंथ में कन्वर्ट कर लिया है। तो एक महीने के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगी वो होगी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। सिमिलरली एज वी नो कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड फॉलो करते हैं, तो आपका सेकेंड मंथ में जितनी फर्स्ट मंथ में आपकी क्लोजिंग बैलेंस होगी, जितना मीन्स कि आपको फर्स्ट मंथ में अमाउंट मिलेगा, वही आपकी सेकेंड मंथ में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। प्लस सेकेंड मंथ में जो आप इन्वेस्ट करोगे RD में, तो इन दोनों ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा और ये आपको सेकेंड मंथ में अमाउंट मिलेगी। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि आफ्टर 18 मंथ्स के बाद आपको जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगी वो कुछ इतनी मिलेगी। तो दैट मीन्स कि जो हमने कैलकुलेट किया है फॉर्मूला से वो बिल्कुल सही है। सेकेंड मैंने केस लिया है। अब RD एज यू नो कि ये हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ मैंने मंथ्स की जगह ईयर्स ले रखे हैं कि मैं 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इज इक्वल टू FV कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट आपको पता है यहाँ पे आपको पूरे साल का दे रखा है, लेकिन हम RD मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो मैं इसे मंथ में इसे कन्वर्ट करूंगी और यहाँ 15 इयर्स का पीरियड दे रखा है तो पीरियड को भी मैं मंथ में कन्वर्ट करूंगी इनटू 12, कॉमा इंस्टॉलमेंट हमारी 8,000 है, प्रेजेंट वैल्यू हमें नहीं दी है और यहाँ पे टाइप जो है मैं चाहती हूँ मुझे बिगनिंग ऑफ द पीरियड में मिले,
तो ये हमारी अमाउंट होगी। अगर मैं पर मंथ 8,000 इन्वेस्ट करती हूँ आरडी में, तो आफ्टर 15 इयर्स के बाद मुझे 33 लैक्स समथिंग अमाउंट मुझे मिल जाएगी। नाउ कम्स टू रेट। रेट का साइंटेक्स और फॉर्मूला हमें पता है। रेट राउंड ब्रैकेट एनपीआर कॉमा पीएमटी कॉमा पीवी कॉमा एफवी इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा टाइप इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा गेट्स इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब यहाँ पर हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम करेंगे रेट टैब, पीरियड हमने यहाँ पे ले रखा है 5 इयर्स का, कॉमा इंस्टॉलमेंट हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे मुझे गिवन है प्रेजेंट वैल्यू, कॉमा मेरी फ्यूचर वैल्यू मुझे गिवन है। टाइप में यहाँ पे ले रही हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर टाइप ले रही हूँ 0, कि मुझे एंड ऑफ द पीरियड मुझे जानना है कि मेरा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे 7% है। अब हम बात करते हैं एनपीआर की। एनपीआर यहाँ पे मैंने दो मेथड्स, यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट वन इज आरडी एंड सेकंड वन इज लोन। मैंने आरडी में इन्वेस्ट किया मंथली इंस्टॉलमेंट में, मतलब मेरी ये 2438.91 की मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे गिवन है, मुझे फ्यूचर वैल्यू गिवन है, पर मुझे नंबर ऑफ पीरियड नहीं गिवन है। तो मैं कुछ इस तरह से नंबर ऑफ पीरियड कैलकुलेट करूंगी, और यहाँ पर मेरा पीएमटी होगी मेरी दिस वन, और यहाँ पर मेरी प्रेजेंट वैल्यू नहीं है तो फ्यूचर वैल्यू, कॉमा टाइप मेरा होगा, मैंने 0 ले लिया, और यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड मेरा आ गया 5 इयर्स के लिए। अब लोन अमाउंट के लिए हम यूज करेंगे, अब हमने लोन लिया है 50,000 का और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी जो ईएमआई जाती है वो है 500। अब मुझे नंबर ऑफ पीरियड निकालना है मंथ्स में, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लिखूंगी एनपीआर टैब। एज वी नो रेट जो है वो हमारा साल का दे रखा है, तो मैं इसे डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगी, कॉमा अब यहाँ पे मेरी इंस्टॉलमेंट है पीएमटी दिस वन, और यहाँ पर जो मेरी फ्यूचर वैल्यू है वो हो जाएगी 50,000, प्रेजेंट वैल्यू वी डोंट नो, और यहाँ पर मैं इसको कॉमा लगा दूंगी सो दैट मैं टाइप पे डायरेक्टली पहुंच जाऊं, और मैं यहाँ टाइप लूंगी 0। तो आप देख सकते हो मेरा नंबर ऑफ पीरियड इन मंथ्स आ गया है 129.63। अब हम कैलकुलेट करेंगे पीएमटी, पीपीएमटी एंड आईपीएमटी। सेम वही एग्जांपल मैंने लिया है। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे लोन दे रखा है, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और नंबर ऑफ पीरियड भी गिवन है, तो अब मैं इसकी हेल्प से मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे निकालूंगी। पीएमटी टैब रेट, अब यहाँ पे जो रेट है वो ईयरली दे रखा है, तो मैं इसे मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 12, कॉमा पीरियड हमारा ऑलरेडी इन मंथ्स है, कॉमा अब यहाँ पर जो मेरी फ्यूचर वैल्यू है वो हमें गिवन नहीं है बट प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, कॉमा फ्यूचर वैल्यू मुझे गिवन नहीं है तो मैं एक और कॉमा लगा दूंगी, और मैं देखूंगी कि और मैं यहाँ पे एंड ऑफ द पीरियड ले रही हूँ 0। तो ये मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं निकालती हूँ कि ये जो इंस्टॉलमेंट है उसमें मेरी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है और इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है। तो पीपीएमटी हम जो यूज करते हैं टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल अमाउंट, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पीपीएमटी टैब रेट डिवाइडेड बाय 12 वाई, बिकॉज ये ईयरली है और हमें इसे मंथली कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर आएगा कि यहाँ पे इन्होंने 129 मंथ्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 130 मंथ्स के लिए लोन ले रखा है, बट अब मुझे देखना है कि मेरी ये जो लोन अमाउंट है वो 1 मंथ मीन्स कि पहले मंथ में मेरी कितनी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, कॉमा पीरियड हमें दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू हमारी 50,000 है, फ्यूचर वैल्यू हमें गिवन नहीं इसलिए मैं एक और कॉमा लगाऊंगी, और टाइप हमारी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे मेरी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई कि आउट ऑफ 500 इंस्टॉलमेंट में मेरी 291.66 मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है। नाउ लेट्स सी कि हमारी इंटरेस्ट अमाउंट कितनी होगी। तो आईपीएमटी टैब रेट हमारा ईयरली है, हम इसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल अमाउंट भी फर्स्ट मंथ का देखा तो मैं यहाँ पे अपने इंटरेस्ट अमाउंट को भी देखूंगी कि फर्स्ट मंथ में मेरी कितना इंटरेस्ट होगा। तो एनपीआर हो गया हमारा ऑलरेडी इन मंथ्स में है, पीवी जो है हमारी यहाँ पे 50,000 है, फ्यूचर वैल्यू हमें नहीं दी हुई तो मैंने एक और कॉमा लगा लिया सो दैट मैं डायरेक्टली टाइप पे पहुंच जाऊं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप जो लिया वो 0 ले लिया। हियर वी गो। अब आप देख सकते हो अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ प्रिंसिपल
प्लस इंटरेस्ट को, तो आप देख सकते हैं कि जो ये मेरा सम बन रहा है वो 500 है, मीन्स हमारी रीपेमेंट, बिकॉज एज वी नो दैट रीपेमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। अब हमारा प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू हमें फिक्स्ड वैल्यू हमें यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ पे इजिली अपनी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे ईयरली दे रखा है, मुझे नंबर ऑफ पीरियड भी ईयरली है, और यहाँ पे मेरी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो मैं कॉमा लगा के डायरेक्टली फ्यूचर वैल्यू पे आ जाऊंगी। फ्यूचर वैल्यू कॉमा, और मैंने यहाँ पे जो टाइप है वो 0 ले लिया है, तो इससे हमारी ये इस बार की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कि अगर मैं आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू मेरी 1,60,000 है, उसको इन्वेस्ट करूंगी एट द रेट ऑफ 7% फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, तो मेरी फ्यूचर वैल्यू 2,24,408.28 हो जाएगी। बट अगर मैं अपनी फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू को देखना चाहती हूँ, तो प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला के हेल्प से आप उसे देख सकते हो। So guys, if you like this video and found it informative, please don't forget to like and share the video. Please share this video as much as you can. For more information on Excel accounting, either it is related to Indian or New Zealand accounting, please make sure you subscribe to this channel and don't miss a single video. Please subscribe the channel and press the bell icon to be the first one to see the latest video. Thank you.